welcome to our talk show Rubaru. I am Neha Chauhan, and today we are welcoming a highly trained classical vocalist, Dr. Aparajita ma'am, who is currently working as assistant professor at Asian Academy of Films and Television. And in this episode, we're going to deep dive into the world of classical music. Firstly, we welcome you, ma'am. Thank you so much, Neha. So, ma'am, my very first question to you is that why did you choose this specific path? Is there any story behind this or any inspiration? First of all, I would say that I didn't choose this Okay. profession at a very young age, and it was my mom, especially behind. At the very, maybe I was 10 or 12, so she introduced me to this very subject, music, and I just followed her rules that okay, I have to learn music, or I have to learn music. I had no interest in music when I was a kid. Okay. So she was the one behind this musical journey of my life. And I just started randomly. I started, and the base was formed. I mean, the foundation was there for me for 10 to 11 years. And I started learning from Srimati Renuka Sen. Ji. And she was there in Ranchi. I'm from Ranchi. So she was there, and she was my Guruma, the very first Guru. तो उनसे मैंने 10-11 साल जो कहते हैं ना नींव बुनियाद बनी म्यूजिक की वो मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ वहाँ पे जी. एंड द बेस इज वेरी मच नीडेड फॉर म्यूजिक इफ़ यू वांट टू बिकम अ म्यूजिक परफॉर्मर अगर आप इसको एज अ करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा Right. सो समहाउ आई थिंक दैट माय बेस वाज फॉर्म उन्होंने मेरा बेस बहुत मजबूत कर दिया था उसके बाद माई जर्नी स्टार्टेड एंड स्लोली आई ग्रू मतलब जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे वो शुरू हुआ and my graduation also was with music honors then masters and then phd Okay. so the entire life is dedicated to music and slowly and till I was doing my masters जब मैं masters भी कर रही थी तब भी मैं sure नहीं थी कि okay this will be my career okay friends used to say तुम बहुत अच्छा गाती हो you can choose this as your career बट आई पर्सनली नेवर फेल्ट कि अरे मुझे करियर लेना भी चाहिए कि नहीं एज इफ मैं कितना कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ बट ऑल ऑफ अ सडन आई वेंट टू कोलकाता यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ITCSRA संगीत रिसर्च एकेडमी जी. so somehow I got chance to learn from there I met Padma Bhushan Girija Devi ji my last guru वहाँ मैंने 7 साल बिताया SRA में एंड प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में मैंने सीखा उनके सामने बैठ के एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि नो दिस इज इट अब म्यूजिक के अलावा कुछ मैं नहीं सोच This is for सकती me. दिस इज फॉर मी दिस इज फॉर मी एंड वो कहते हैं ना म्यूजिक को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लो द सब्जेक्ट सिलेक्ट्स यू यू You आर can. नॉट सिलेक्टिंग द Right. सब्जेक्ट यू आर नॉट सिलेक्टिंग सो म्यूजिक ने somehow मुझे सिलेक्ट कर लिया एंड that time, that 9 years in Kolkata, ITCSRA, that was the golden period of my life. And everything changed and I performed, I learned. मतलब स्वर से लेकर स्टेज तक एंड इंटरेक्शन ऑडियंस इंटरेक्शन एवरीथिंग आई लर्न देयर कि एज अ परफॉर्मर आपको कैसे बनना है एंड किस तरह से खुद को रखना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑल्सो मैटर्स तो म्यूज़िक हमें कहीं ना कहीं वो भी सिखाती है साइड वाइज कि हाउ यू हैव टू बी वेरी काइंड एंड जेनरस बीइंग अ परफॉर्मर सो या दिस इज माय जर्नी लॉन्ग जर्नी एंड देन उसके बाद आई परफॉर्म विद माय गुरुमा आई परफॉर्म सोलोज एज वेल एंड दैट वाज प्योर classical, semi-classical, slowly stepped into ghazals also. Okay. उसके बाद मैं चली आई वहाँ से एज अ सीनियर स्कॉलर मैं वहाँ से निकल गई बिकॉज वहाँ पे भी एक टाइम पीरियड होता है तो वहाँ से चली आई देन आई वेंट टू DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल I was a teacher there for 7 years again a different experience with kiddos from nursery to class 12 that was a different experience mentorship now I was into mentorship teaching
फर्स्ट आई वाज अ परफॉर्मर, मैं परफॉर्मेंस तब भी करती थी अलॉन्ग विद टीचिंग। जब मेंटरशिप में मैंने एंटर किया, फिर मुझे लगा कि नो, नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट। परफॉर्मेंस भी है, आई Hmm. हैव टू मेंटेन माय You have to परफॉर्मेंस एंड balance आई हैव both. टू टीच दी स्टूडेंट्स एज वेल हु आर एक्चुअली विलिंग टू Learn. लर्न म्यूजिक। तो मेरा वहाँ से मेंटरशिप शुरू हुआ। Then I left DPS. I went to RTM Academy, and that's an online platform, teaching Hmm. platform, and that is whole and soul music academy है वो RTM Academy. I worked there for 1 year. Then all of a sudden, AFT came in the picture, and I'm here since 2 months, and Hmm. I'm very thankful to Parth sir, our dean. उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आई शुड जॉइन आफ्ट एज अ मेंटर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड आई एम लविंग इट। आई एम That's amazing to hear about it. लविंग Okay, ma'am. Being in classical vocalist, you also know about the gharana. तो इट। आप कौन से घराने से? मेरा लाइक व्हेन आई स्टार्टेड म्यूजिक आई Hmm. वाज इनटू विष्णुपुर घराना। Hmm. रेणुका मैम वाज इनटू विष्णुपुर घराना, देन ग्वालियर, आई स्विच टू ग्वालियर, देन लास्टली विद अप्पा जी, आई मीन गिरिजा देवी जी, इट वाज बनारस घराना। ओके। या तो आपने इतने सारे गुरु के अंदर ट्रेनिंग ली है, उनसे मतलब कुछ बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसी कोई सीख जो आपके साथ कहते हैं ना हमेशा जो एक जुड़ी रही है, बहुत आपके दिल के करीब हो, ऐसे कोई सीख हो? ऐसी कोई सीख, दैट इज आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। Music is all about notes, sur and swar. You have to be very particular with your riyaz and आप क्या गा रहे हैं उस स्वर को और आप सुर को समझकर आप परफॉर्म कीजिए। बी इट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल एंड एनीथिंग यू आर परफॉर्मिंग। म्यूजिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुर में हैं कि नहीं, एंड आप जो परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं कितना। तो मेरा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे लर्निंग मिली है, स्टिक टू दी ग्राउंड लेवल, आई मीन द बेस। आप बेस मजबूत कर लो, स्वर आपके पास होने चाहिए, लव द नोट्स, आई मीन मेक फ्रेंड्स विद द नोट्स। तो फिर वो आपके पास हमेशा के लिए रह जाएंगे, दे विल नेवर लीव यू द नोट्स। ओके। और अगर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी की बात करें, तो आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते होंगे जो बोलते होंगे कि मैम हमें थोड़ा जल्दी सिखा दीजिए, हमें जल्दी सीखना है, वी वांटेड टू बी डू मोर इन करियर एंड वांट टू लर्न एवरीथिंग एट एक शॉर्ट टर्म ऑफ स्पैन, बिकॉज बीइंग इन जेन ज़ी वी हैव like a short span of attention towards anything. We want everything to be very fast. So what's Yes, your thought yes, on yes. that? See, अभी in this world of Instagram and FB, Hmm. especially Instagram, what is being observed is the patience level is going down and Yeah. down. There is no patience level, zero patience level, and with this 15-second and 30-second के वो scrolling में, the young generation is losing the patience level. So I try my best to give them the very lighter ones first, कि हल्की चीज़ों से शुरू करो, हल्की चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करो, पहले तो सुनना शुरू करो। These are the things, ये सॉन्ग, ये स्वर, ये नोटेशन, फर्स्ट स्टार्ट लिसनिंग टू देम। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट गेन होता है एंड उनको फिर मैं धीरे धीरे सिंपल सॉन्ग्स पहले देती हूँ। आई जस्ट डोंट जम इन टू राग गायकी एंड आलाप एंड तान, वो डर जाएंगे बेचारे। वो डर जाएंगे। तो उनसे मैं सिंपल सिंपल सॉन्ग्स कहती हूँ कि ये सुनना, पहले तो सुनकर आओ, कैसा लग रहा है तुम्हें, बताओ ये सॉन्ग कैसा है, क्या तुम्हें लगा, फिर उसको तैयार करके आओ, फिर मुझे सुनाओ, फिर उस पर बात करती हूँ मैं। फिर आई गिव देम डिफरेंट, वो अलग अलग जॉनर सेट कर देती हूँ, ये भी सुनना, ये भी सुनना, ये भी सुनो। उनसे फीडबैक लेती हूँ। जब धीरे धीरे उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट गेन होता है ना, देन आई कम टू दिस स्वरा पार्ट, कि अच्छा पता है ऐसे ऐसे ये जो तुमने लाइन गाया, ये सॉन्ग गाया, इसके पीछे का क्या राज है, कैसे हो रहा है ये। देन आई कम टू द बेस, उस पे वहाँ पे फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट गेन होता है कि अच्छा दिस इज द लाइन, दिस इज द नोट्स। फिर वो समझते हैं कि ओके नो, वी हैव टू नो द बेसिक्स फर्स्ट टू सिंग अ सॉन्ग प्रॉपरली। आप गाते कैसे हो ना, अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग आई हैव, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने बहुत रिसर्च किया है अपने म्यूजिक पे, एंड स्पेशली माई वॉइस। Voice matters when you will be performing. Right. If you are a singer, if you are a vocalist,
whatever. Like you are now, I mean, speaking with me, asking questions. Voice matters. कि आप Right. किस लहजे में बात कर रहे हो, किस Hmm. तरह से बात कर रहे हो. In singing, it matters the most how you are placing your voice. तो उसके पीछे रियाज है, उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग है, उसके पीछे लिसनिंग है. बहुत सुनना पड़ेगा आपको. ठीक है. Hmm. तो फिर रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि नो, आई हैव टू वर्क विथ माय वॉइस फर्स्ट. बेसिक्स तो है, ओके, सीख लिया. फिर अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूँ मैं, अपनी आवाज़ को रखूँ कैसे. Right. तो फिर एंड डोंट स्टिक टू वन सेक्शन, आई मीन वन जॉनर. कि बॉलीवुड गा रहे हैं तो बॉलीवुड ही गा रहे हैं, क्लासिकल गा रहे हैं तो क्लासिकल ही गा रहे हैं, गजल तो गजल. नो, आई मीन सारे सॉन्ग सुनो, हर तरह के सॉन्ग सुनो, इंग्लिश भी सुनो. यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंग्लिश सॉन्ग एज वेल. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, आई सेट देम फ्री, गो एंड लिसन एंड लर्न एवरी टाइप ऑफ म्यूजिक एंड लिसन टू एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग. Right. फिर मेरे पास आओ, उसमें से तुम्हें क्या मिला मुझे बताओ पहले, गिव मी द फीडबैक. उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ती हूँ. ओके, नाउ व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर एम, एक्चुअली तुम्हें करना क्या है म्यूजिक में. तुम्हें वोकलिस्ट बनना है या तुम्हें परफॉर्मर बनना है, या यू वांट टू प्ले, यू वांट टू अरेंज, व्हाट. Then I move slowly with my students. सो एज यू टॉक अबाउट जॉनरे, तो अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो हमारे पास पॉप है, R&B है. वी आर लाइक फोकसिंग मोर ऑन द वेस्टर्नाइजेशन एंड मोर नॉट इनटू द कल्चर, राइट. इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. वी हैव अ लॉट ऑफ कल्चर, वी हैव अ लॉट ऑफ folk music, right, that haven't discovered it yet. So what do you think that it is most like it is important to teach our young generation about this? It is very important. Somehow, to my knowledge, we are diverting from our tradition. Right. अभी being a mentor और being a parent, आप बाकी पेरेंट्स को भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपने बच्चों को आप ट्रेडिशन से दूर ना करें. वेस्टर्न म्यूजिक एंड वेस्टर्नाइजेशन इज फाइन, इज ऑल गुड, ऑल एक्सेप्टेबल. बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब अडाप्ट कर रहे हैं. बट हम जिस कंट्री में है वो अपने आप में ही इतनी सारी चीज़ें लेकर बैठी हुई हैं. why we are into so much western music or westernization, why we are not digging deep into the core tradition of our Our country, roots. especially folk music. What you said, फोक म्यूजिक, इतने हर स्टेट के अलग अलग म्यूजिक हैं, हम वहाँ से कितना कुछ डेवलप कर सकते हैं. Right. एंड बीइंग अ क्लासिकल म्यूजिशियन, हम कितना कुछ फॉर्म कर सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है. एंड आई एम नॉट ओनली स्टिक टू क्लासिकल म्यूजिक, मैं हर तरह के सॉन्ग्स गाती हूँ, परफॉर्म भी किया है. फोक भी, आई हैव लर्न कजरी, चैती, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ. गजल्स, माय फेवरेट इज गजल. अब तो बॉलीवुड भी गाने लगी. तो मैंने कहा जैसे कि मैंने खुद पे बहुत काम किया है. टू ट्रेन अ पर्टिकुलर स्टूडेंट यू हैव टू डिग डीप. Right. आपको खुद पे पहले वो रिसर्च करना होगा कि आप कैसे देखते हो म्यूजिक को. देन ओनली आई विल बी एबल टू गाइड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो मैं अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ कि प्लीज डोंट लीव आवर ट्रेडिशन. कि आप करो, सब करो, लेकिन पहले यहाँ तो झांको कि हमारे पास क्या है. देयर आर सो मेनी थिंग्स कि हम अपने आप में इतना कोलैबोरेट करते हैं. देन वी शुड थिंक अबाउट कोलैबोरेटिंग विद देम और देयर म्यूजिक. Right. हम फोक एंड क्लासिकल में ही कितना कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम फोक एंड गजल में ही कितना कुछ कर सकते हैं, Absolutely. गजल एंड क्लासिकल को लेकर कितना कुछ कर सकते हैं, मैशअप्स क्रिएट कर सकते हैं. सो मेनी थिंग्स वी कैन डू. तो समहाउ इट्स लैक इन मे बी हमारे गुरु या जो टिपिकल ऑर्थोडॉक्स जो फीलिंग है, क्लासिकल क्लासिकल क्लासिकल, हमें कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा सा निकलना. मैं खुद एक क्लासिकल, मैंने, मेरा बेस ही वही है. पर मुझे लगता है कि आज की जनरेशन सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक करके दे कांट सर्वाइव. And Because right. where is the audience for classical music? We can't give only classical music. And changes Yes, are constant. We have to change. change is the only constant and you have to adapt the change. आपको ऑडियंस की नर्व पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि वो मांग क्या रहा है आपसे. वो क्लासिकल मांग रहा है, वो मैशअप मांग रहा है, वो थोड़ा सा कुछ जेंजी कुछ मांग रहा है, आपको क्या मांग रहा है. गिव, आप अपने आप को प्रिपेयर करो. बट येस, बी रेस्ट अश्योर दैट यू हैव टू हैव द बेसिक नॉलेज. Right. वहाँ वो मैशअप क्रिएट करने के लिए भी आपको वो फाउंडेशन चाहिए, नहीं तो वो मैशअप भी ऊपर ऊपर तैरता रहेगा.
उस मैशअप में भी मज़ा नहीं आएगा फिर कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वी हैव टू वर्क ऑन दिस म्यूजिक पार्ट कि एक्चुअली हमें म्यूजिक कहाँ ले जा रहा है। Hmm. एंड इट्स वेरी स्कैरी इफ आई सिट एंड थिंक अबाउट म्यूजिक अभी आज के डेट में। इट्स वेरी स्कैरी। आई Why? मीन द वेस्टर्न म्यूजिक इज coming It's and it has overpowering and started dominating actually. dominating. Yes. It is dominating. तो हमें कहीं ना कहीं स्टेप इन करना है इस चीज को कि इन आवर कंट्री वी आर विथ समथिंग आई मीन विच इज वेरी वेरी रिच। हमारा ट्रेडिशन कहीं कहीं ना कहीं पीछे चला जा रहा है एंड वो घर से ही शुरू होगा। वो घर में ही इनकलकेट करना होगा। वी हैव टू मेक श्योर दे the kids are into I mean at least उनको knowledge तो हो Right. कि हमारा ये है। फिर उनका importance तो वो parents teachers and our responsibility is much more than parents I think। क्योंकि अब वो ऐसे टाइम पे हैं students कि mind divert हो रहा है, quick divert हो रहा Easily. है, easily divert हो रहा है and it takes 5 seconds वो divert हो जाएगा। तो we have to be as a mentor we have to be very particular about the selection part कि एक्चुअली बच्चे को चाहिए क्या। स्टूडेंट्स आर देयर कमिंग, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। यहाँ की मैं बात करूँ मेरे पास अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं बाहर। Wow. बट अगर मैं उनसे पूछूं कि इसके पीछे का वो क्या है, बता सकते हो ये आया कहाँ से है, हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड, कंपोजिशन कैसे हो रहा है ये जो तुम परफॉर्म कर रहे हो, देन द आंसर इज जीरो एंड विच इज वेरी सैड, विच इज वेरी सैड। तो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंटर मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि उनको वो वहाँ उस बेस तक मैं ले जाऊँ। ये परफॉर्म सब गाओ, तुम हर तरह की म्यूजिक सुनो गाओ, लेकिन प्लीज बेस से मत हटो। Right. यू हैव टू मेक कनेक्शन, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विद द बेस, तब आप ऑडियंस को कुछ सॉलिड दे पाओगे। वाई अरिजीत सिंह इज सो नाउ, मतलब सबकी आंखों का तारा है वो। वाई सोनू निगम इज सो पॉपुलर। तो किसी ने अपने बेस को नहीं छोड़ा, किसी ने भी नहीं। तो एंड पर्टिकुलरली द स्वराज, द नोट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक वो आपको हर तरह के इमोशन से वाकिफ कराएंगे। हैप्पीनेस, माय गुरुमा यूज्ड टू से, वो आपने पूछा ना कि आपको आपके लर्निंग में कौन सा ऐसे कौन कोई सी सीख बात, थी। ऐसा कोई सीन कि आपको याद है। तो दिस वन क्लिक जस्ट नाउ व्हाइल आई वाज स्पीकिंग। माय गुरुमा यूज्ड टू से दैट स्वर आपको, एक स्वर आपको रुला सकते हैं, आपको हंसा सकते हैं, आपको सुला भी सकते हैं। एक नोट में, एक स्वर में इतना पावर है, इट इज सो पावरफुल। व्हाई ऑल दिस हीलिंग म्यूजिक एंड मेडिटेशन म्यूजिक, उसमें क्या है? इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ दी स्वराज। दो दो तीन तीन स्वराज के जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इफ वी आर सो मच, आई मीन अगर हम बेस से थोड़ा सा जुड़ जाते हैं ना, we'll come to know the power of notes and all these healing musics and meditation music, yoga music, whichever is available on YouTube, वहाँ पे और कुछ नहीं है but the frequencies of swaras are being played. Right. So being Notes. okay. So being in performers. So how do you prepare yourself before going to in stage? It's a general warm up session, कुछ नहीं, 5-10 मिनट का So don't you feel warming up. nervous? I was never nervous, I think. I mean, Okay. since childhood कभी नहीं मुझे वो stage fear, I mean nervousness, हाँ थोड़ा बहुत, मतलब एक बार stage पे जब आता है तो seeing the audience थोड़ा सा वो एक hit करता है, okay now I'm somewhere, I have to perform, I have to give my best। तो वो nervousness तो रहेगा हमेशा से, वो Right. रहा है। बट बिफोर स्टेपिंग इनटू वो थोड़े से 10 मिनट, इसीलिए कि वो नर्वसनेस थोड़ा सा ज़्यादा हावी ना हो, वो 10-15 मिनट का एक वार्म अप होता है। जस्ट हम ऑन वन नोट, सा। तो सा पे मैं हमिंग करती हूँ क्वाइटली, क्लोजिंग माई आईज एंड आई डोंट नथिंग। सिर्फ एक नोट को पकड़ के मैं हमिंग करती रहती हूँ, बस। दैट इज माई वार्मिंग अप सेशन। Okay, that's good. And अगर हम बच्चों की बात करें who wanted to take admission at AAFT and that too in classical music, so उनको ऐसा कौन-कौन से exposure मिलेगा? They'll get to know the classical roots, कि म्यूजिक एक्चुअली क्या है, बैकग्राउंड क्या है,
what is classical music, क्यों आया classical music, and they can adapt slowly into, or they can go into the teaching process. Hmm. They can be a mentor, they can be a vocal coach. एंड क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ आपको परफॉर्मर भी नहीं बनाता, वो आपको एक वोकल कोच भी बनाएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, वॉइस. एंड अगर आप इंस्ट्रूमेंटल में कुछ कर रहे हैं तो वो आपको रिदम से वाकिफ कराएगा. तो they can, there is various streams you can opt for if you are into a classical music course. तो वो आपको सिर्फ क्लासिकल या आप राग ही गाते रहो या राग ही परफॉर्म करो, नो. यू हैव दी, आई मीन, प्लीज कम एंड ज्वाइन. आफ्टर आप क्लासिकल म्यूजिक का कोर्स आप ज्वाइन करो, देन यू स्लोली स्लोली आप डाइवर्ट करो वहाँ से. विच जॉनर यू आर सिलेक्टिंग. आपको इंस्ट्रूमेंटल में जाना है, गो. You want to sing, go. You want to teach, go. There are many streams. You want to be a vocal trainer, voice culture trainer, please go. वो भी आपको क्लासिकल म्यूजिक ट्रेन कर देगा वहाँ पे. Wow. So how to train, I mean how to speak, how to deliver a dialogue, how to say, sing a lyric, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, वहाँ पे भी क्लासिकल म्यूजिक will help you. And people have that assumption that अगर आप classical music सीखते हो तो it's like boring classes, alas, suggestion. So वो एक misconception है, उसको कैसे change करें? आप थोड़े से लाइटर वर्जन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, बच्चे डर जाएंगे. अभी के समय में दे वोंट अंडरस्टैंड ये क्या है, आकार क्या है, आलाप क्या है, वाई मंद्र सप्तक, वाई मध्य सप्तक, वाई तार सप्तक, क्यों मैं क्यों सीखूं. सबसे बड़ा सवाल उनके मन में आएगा कि वाई शुड आई लर्न ऑल दिस, मुझे तो गाना गाना है. तो गाना गाना है, गिव देम द गाना, गिव देम द सॉन्ग. जो मैंने कहा, ओके लेट्स स्टार्ट विद अ सॉन्ग फर्स्ट. हम सिंपल गाएंगे, लेट्स स्टार्ट. वो धीरे 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 उनमें वो इंटरेस्ट इंजेक्ट करना होगा स्लोली, कि ये क्यों गा रहे हो, कैसे गा रहे हो, इसके पीछे क्या है, पता है, पता है. तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स एब्सोल्युटली अ मेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट. आप किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं. देर आर टीचर्स की एकदम शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल आलाप, आ करना है तो आकारी करो, ये सरगम करना है तो सरगम ही करो, रियाज करना है तो करना है. नो, यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ. आप वक्त तो देखो, अभी का टाइम क्या है. वो टाइम नहीं रहा कि आप घंटों स्टूडेंट को कहो कि 5 घंटे रियाज करो रोज. नो, यू कांट. आई एम नॉट डूइंग 5 घंटे का रियाज नाउअडेज. नहीं, आप बैठो, लेकिन उस आधे घंटे का ही रियाज करो, बट उस हाफ एन आवर के प्रैक्टिस में व्हाट यू नीड टू फॉलो, एक्चुअली नीड टू फोकस, उस पर ध्यान दो. राइट. आपकी आवाज क्या है, उस आवाज के हिसाब से आप प्रैक्टिस करो. ज्यादा बेस में अगर आवाज है तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप हाई हाई के गाने गाओ या इसी स्केल में ही आपको रियाज करना है. तो अभी के समय में आई कांट फोर्स एनीथिंग. आई कांट. आई हैव टू बी, आई मीन, लिबरल विद ऑल दिस थिंग्स. नहीं तो बच्चे डर जाएंगे, वो भाग जाएंगे 2 दिन क्लास करके. मैं नहीं चाहती. मैं तो चाहती हूँ कि 50-100 स्टूडेंट रोज आए मेरे पास कि प्लीज आओ. बट दिस इज द प्रोसेस. हम ऐसे शुरू करेंगे लाइटर वर्जन में, लेकिन पीछे ये है, कहानी ये है. तो वहां तक ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें इसको भी लेना होगा. Right. So at last, any message you wanted to give to the aspiring classical vocalist or to the students? My suggestion और my opinion, मैं एक ही बात कहूँगी कि आप अगर क्लासिकल म्यूजिक चूज कर रहे हैं willingly, if you are choosing this course, आप उस पे स्टिक मत रहो. प्लीज लर्न इट वेरी नाइसली, इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर. आप उसको सीखो, आप फाउंडेशन को बनाओ, नो द बेसिक्स, बेस को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन डोंट स्टिक टू ओनली क्लासिकल म्यूजिक. बीइंग अ परफॉर्मर यू हैव टू चूज द वेज. आप बहुत तरह के आपको वेज मिलेंगे क्लासिकल म्यूजिक से. प्लीज लिसन टू ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक्स एंड आप उसको अडाप्ट करो, आप उसको मिक्स करो, आप क्रिएट गुड म्यूजिक. ट्राई टू क्रिएट गुड म्यूजिक. एंड क्लासिकल म्यूजिक ये नहीं कहता है कि सिर्फ मेरे साथ ही रहो, वो कहता है कि क्रिएट गुड म्यूजिक फर्दर. इट्स अ मैसेज फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक कि प्लीज स्टिक टू द बेस and create good music. So my suggestion will be, please
stick to good music and try to create good music. बट आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. कुछ भी आप ऊपर ऊपर मत करो. So it won't be fruitful in future. Right. Thank you so much, ma'am, for giving Thank you such so an much, Neha. Thank you so welcome, ma'am. So thank you so much for giving such an insightful session about classical music, and it was just inspiring that you told about your journey. It was beautiful. Thank you so much. Thank you so much. Welcome, ma'am. We will be back with another episode. Keep watching our talk show, Ruguru.